পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ হিন্দুদের জাগ্রত করতে হবে। এখন হরিনামই একমাত্র সমর্থন। বাংলাদেশের ঘটনা সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে ঘুমন্ত হিন্দুদের জাগ্রত করতে হবে। হিন্দুরা তৈরিতে ব্যস্ত, সরকারের প্রতি আস্থা নেই, তাই ঈশ্বরের আশ্রয় সমর্থন। বাংলাদেশের রাষ্ট্র যেভাবে ঘটনা ঘটেছে, চিহ্ন প্রভু গ্রেফতার সহ অনেক সংখ্যালঘুদের উপর লাগাতার আক্রমণ, হত্যা, লুটপাট চালানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সহ ভারতবাসী অসংখ্য হিন্দু মনে করলেন সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইসকন কলকাতা আয়োজিত হরি নাম সংকীর্তন। রাধারমণ দাস প্রভু সাধারণ সম্পাদক একটি স্বতন্ত্র সাক্ষাৎকারে বললেন, প্রথমে ঘুমন্ত হিন্দুদের জাগ্রত করতে হবে। হিন্দুদের অবস্থা খুব খারাপ। হিন্দু ঘর বাড়ি, মন্দির ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অশুভ শক্তি লাগাতার হামলা চালাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসকন মন্দিরকে ফতোয়া জারি করে নিষিদ্ধ করলেন। জঙ্গি ধরনের কাজ করছে। ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের পরেও বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার শিকার হচ্ছেন। এই প্রতিবাদে বিরুদ্ধে সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের কাছে তারা চিঠি লিখেছেন, কিন্তু কিছু হচ্ছে না। বাস্তবিক সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা, মন্দির ভাঙচুর করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মন্দির, সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে হরি নাম কীর্তন করছেন। দ্রৌপদীর সময় সবাই নীরব থাকলে তিনি ভগবানের নামের সাহায্য নেন। তাই 850 ইসকন মন্দির দেশ বিদেশ থেকে কোটি কোটি ভক্ত প্রতিবাদ হরি নাম কীর্তন করে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এখন সময় এসেছে হিন্দুদের জাগ্রত করা। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। ভগবানের প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখানে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি, ধর্মে যারা ক্রমাগত হামলা, নির্যাতন, তারই প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া করে সিচুয়েশনটাকে কন্ট্রোল করা যায়, সেটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা যাতে ভগবান সবার জন্য মঙ্গল করে, সবাই যেন সেটাকে ভাগ করে। সেটাতে আমরা সর্বধর্ম সমন্বয়কে আমরা বিশ্বাস করি। যারা সত্যিকারই যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী, তারা কিন্তু সবার সঙ্গে কাজে কাজ নিয়ে চলতে বিশ্বাস করে। এইটুকুনি জানি আর সেটা আমার সঙ্গে ঘটনা ঘটে। মেট্রো স্টেশনে আমার পুরো কম হচ্ছিল, তাকে কিছু সাহায্য করে। তো এর থেকে সকলেই যে মুসলিম মানেই যে সবাইকে আক্রমণ করবে এটা নয়, সবাই মেলবন্ধন করে চলে। এরা যাচ্ছে আমরা বাংলাদেশে এটা টেরোরিজম ছাড়া কিছুই নয়। জন্য আমরা এটাই বক্তব্য থেকে আপনার প্রায় ভগবানের স্বর্ণাশ্রয় করে থাকুন। যত সম্ভব আপনারা সরকারের কাছে দাবি জানান, সরকারের কাছে আপনারা অ্যাপিল করুন যেন আপনাদের একটা মিনিমাম সিকিউরিটি যেন আপনাদের দেওয়া হয়, এবং আপনার স্বার্থ থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাই ভালো থাকুন, ভগবানের স্মরণ করুন, ভগবানের নাম জপ করুন। ভগবানই আপনাদের সহায়ক, ভগবানই আপনাদের সাহায্য করবে, ভগবানই আপনাদের একমাত্র আশ্রয়। आप लोग सभी देख रहे हैं कि किस तरह जो आक्रमण हो रहा है 100 दिन से, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो बांग्लादेश में जो भी हिंदू माइनॉरिटीज़ है और अदर माइनॉरिटीज़ है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो सभी लोग इस हिंसा के शिकार हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो इसीलिए आज हम लोग 1 दिसंबर को हमने ये देखा कि हिंसा रुकने का नाम ले नहीं रही है। तो आज पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के देशों में जो 850 मंदिर हैं और जो हजारों सेंटर हैं, वहाँ पर हमारे करोड़ों भक्त, इस्कॉन के भक्त आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं सवेरे से। और जिस तरह द्रौपदी महाभारत में जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पतियों से हेल्प मांगी, फिर गुरुजन से मांगी, भीष्म पितामह से मांगी, लेकिन सबने सिर झुका लिया और कोई मदद के लिए नहीं आया। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदू और माइनॉरिटीज़ हैं, वो 100 दिन से यूनाइटेड नेशन की तरफ देख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन राइट्स को पुकार रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है। तो जिस तरह द्रौपदी ने जब देखा कि कोई नहीं सुन रहा है तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाकर हे गोविंद हे गोपाल और भगवान के शरण में गई। तो उसी तरह आज हमारे पूरे विश्व में जो भी मंदिर हैं वहां पर आज हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पर शांति बहाल हो। हम लोग तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल कमेंट नहीं करते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी की थी कि अपील किया था बांग्लादेश सरकार से कि जल्दी से वहां पर शांति बहाल हो जाए। तो भारत सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन किसी तरह ऐसा हो रहा है कि उन प्रयासों का कोई भी फल नहीं निकल रहा है। और जो जमीनी हकीकत है वो यही है कि वहां पर बहुत सारे इस्लाम के ब्रह्मचारी 4 ब्रह्मचारी को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। और बहुत हमले की हम लोग देख ही रहे कि किस तरह मंदिरों पर हमला हो रहा है। हमारे अभी जस्ट लास्ट 2 दिन में 2 मंदिरों को जबरदस्ती बंद कर दिया। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो बहुत ही हम लोग को हताश कर रहा है, क्योंकि कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और 100 दिन से तो सभी लोग ताक रहे हैं कि जो विश्व के सभी देश हैं, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स है, वो लोग इन लोग की आवाज सुनकर उनकी मदद में आएंगे। लेकिन अभी तक जैसा मैं बता रहा था कि कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का रास्ता खुला रहता है। और हम लोग उसी द्रौपदी जी के मूड में हम लोग भगवान से आज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं और जो अन्य माइनॉरिटीज हैं वो जल्द से जल्द वो सुरक्षित हो सके। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो बताते हैं कि कलयुग में सभी लोग हरिनाम के माध्यम से वो हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस्लाम के जो देशों में 850 मंदिर है और हजारों हजार सेंटर हैं और करोड़ों जो भक्त विदेशी भक्त हैं वो इसीलिए हुए क्योंकि हरिनाम के प्रभाव से। हरिनाम बहुत ही शक्तिशाली है। चैतन्य चरितामृत में कहा भी गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान का जो अवतार होता है वो भगवान के नाम के। हमको पूर्ण विश्वास है कि जब हम लोग असहायों के भगवान के शरण लेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, तो भगवान जिस तरह द्रौपदी को बचाया चिरहरण होने से, उसी तरह वो हम लोग की रक्षा। समय तो बहुत ही संकटकालीन है। तो यही मैसेज है कि जो हिंदू है एक्चुअली बहुत नाम के हम लोग 80 करोड़ 1 बिलियन हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू पहले दूसरे को दोष देने से पहले हमें खुद झांकना पड़ेगा कि आज जो हिंदू है वो रील्स बनाने में व्यस्त है। और आप देख लीजिए कि जो हिंदू लड़कियों से या जो यूथ्स है उनसे आप पूछ लीजिए कि भगवान राम के परिवार का नाम भी बता दें तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो वामपंथी जो षड्यंत्र था जिसके द्वारा उन्होंने हमारे जो हिस्ट्री बुक्स और जो एजुकेशन प्रणाली है उसके ऊपर में उन्होंने गलत प्रभाव डालकर जो हमारे हिंदू यूथ है उनको भ्रमित किया है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड के माध्यम से हमारे बच्चियों को गलत राह पर लेके जाया जा रहा है और बॉलीवुड का कंट्रोल दुबई से होता है, सभी जानते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि हिंदू सोते रहे और हम लोग का ब्रेन वॉशिंग होता रहा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हिंदुओं को पहले उठने की, इससे पहले कि हम दूसरे लोगों से दोष देते रहे।